Today we are going to discuss about time domain analysis of RL and RC circuits. When any circuit contains energy storing elements such as capacitors and inductors, the analysis of the circuit involves solution of differential equations. The analysis of such circuits with respect to time as a variable is called time domain analysis. So in such kind of analysis, the response of the circuit is plotted with respect to time. So if you see the RL and RC combination, resistor and inductor combination, as well as resistor and capacitor combination, so such circuits with energy storing elements yields first order differential equations. Therefore RL and RC circuits are called first order RL and RC circuits because their equations are first order differential equations. In case of RC circuit, the variable will be capacitor voltage VC, and in case of RL circuit, the variable will be inductor current IL. So we will plot VC with respect to time and IL with respect to time. Now if circuit is having resistor, capacitor, inductor, voltage source, current source and switches, then in such kind of cases the response of the circuit to sudden application of voltage or current is called transient response. The most common transient response is due to switch on and off. So the transient response is a natural result of the presence of inductor and capacitor, or in general energy storing elements in the circuit. Now due to switching on or off, or due to any kind of disturbance or interruption, the energy state of the energy storing element in the circuit is get disturbed. After some time the circuit settle down to the new steady state operation. So the time required for the circuit to change from one steady state energy state to another steady state energy state is called transient time or transient period. So this kind of transient time is normally of very short duration, and the response that varies during the transient time is known as transient response. तो बेसिकली हम RL एंड RC सर्किट्स के जिसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उनका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनालिसिस करेंगे, दैट इज टाइम डोमेन एनालिसिस. एंड जो एनर्जी स्टेट ऑफ द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वो स्टेट अगर आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ करोगे तो इट गेट्स डिस्टर्ब, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. एंड टाइम फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट विच इज स्टेडी स्टेट टू द अनदर एनर्जी स्टेट विच इज स्टेडी स्टेट, ये जो टाइम है बिटवीन टू स्टेडी स्टेट एनर्जी स्टेट्स, इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइम. तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट्स. तो अगर आप ये सर्किट डायग्राम देखो तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इट इज़ कनेक्टेड विद द आर एंड एल. इधर स्विच दी हुई है, स्विच कैन बी इन पोजीशन 1 और 2, एंड कनेक्शन 2 इज शॉर्टिंग द आरएल कॉम्बिनेशन. तो अगर स्विच पोजीशन 1 में होगी तो वोल्टेज सोर्स विल अप्लाई अक्रॉस आरएल कॉम्बिनेशन. अगर स्विच पोजीशन 2 में होगी तो आरएल कॉम्बिनेशन इज शॉर्ट सर्किटेड वाया दिस वायर. स्विच जब पोजीशन 1 में कनेक्ट होगी तो बैटरी का सप्लाई आरएल में आएगा, एंड इन दैट केस द करंट विल स्टार्ट राइजिंग. धीरे धीरे करंट इंक्रीज होगा. अगर स्विच पोजीशन 2 में रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और जो इंडक्टर में स्टोर एनर्जी है वो रिलीज होगी, एंड द करंट विल स्टार्ट डिकेइंग. करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी. तो ये दो स्टेट है एनर्जी स्टेट, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम बात करते हैं राइज ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट.
तो अगर आप रेजिस्टिव सर्किट बनाओगे, इंडक्टर निकाल दोगे एंड इफ यू पुट स्विच इन बिटवीन, सो देर इज अ वोल्टेज सोर्स, स्विच एंड रेजिस्टर, तो उस टाइम पे अगर आप स्विच ऑन करोगे, मतलब कि वोल्टेज सोर्स को रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, तो देर इज अ सडन राइज, इंस्टेंटेनियस राइज ऑफ द करंट। फिर वो करंट कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रेजिस्टेंस, रजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट फ्लो होगा। अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो इमीडिएटली इट गोज टू ज़ीरो। तो स्विच क्लोज की तो करंट राइज हुआ, करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ओपन की तो करंट ज़ीरो हो गया। तो करंट rises and decays instantaneously and we get the value of I according to Ohm's law, that is V by R. So here you can see that the current is constant, it is not the function of time. With respect to time, value of current is not changing, it is constant. तो ये जो सर्किट है उसका जो बिहेवियर है, इट इज़ नॉट ट्रांजिएंट बिहेवियर, ये ट्रांजिएंट बिहेवियर नहीं है। मगर अगर आप देखोगे कि आरएल सर्किट है, उसमें स्विच दी हुई है, हमने यही कॉम्बिनेशन फिर से बनाया है, ए पार्ट निकाल दिया है, हमने टर्मिनल 1 को रखा है, तो सप्लाई वोल्टेज एंड आरएल के बीच में स्विच है। तो एट द टाइम टी इज इक्वल टू 0 हम क्या करते हैं कि स्विच को टर्मिनल 1 के साथ कनेक्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर, इट डज नॉट अलाउ द value of the current to reach its final steady state value। तो सडन चेंज इन द करंट होता है जो, वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसको वो अपोज करता है। तो हमारा जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, इमीडिएटली वो फाइनल वैल्यू दैट इज V by R वहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा। इट विल टेक डिफाइनाइट टाइम टू रीच द फाइनल वैल्यू। एट द फाइनल स्टेडी स्टेट इंडक्टेंस हैज़ नो इफेक्ट, और जब वो फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाएगा देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज व्हेन वी क्लोज द स्विच करंट विल स्टार्ट टू राइजिंग, बिकॉज ऑफ दैट राइजिंग करंट द इंक्रीजिंग फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस, दैट फ्लक्स विल इंड्यूस एन EMF in the coil which opposes the cause, that is the current producing अकॉर्डिंग टू लेंजीज लॉ। तो लेंजीज लॉ के अकॉर्डिंगली जो इंडक्टर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और फ्लक्स लिंक होगा, उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो उसके कॉज को, दैट इज दिस करंट सप्लाई, ये वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो लेट अस राइट मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर दिस। तो एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 स्विच एज इज क्लोज, इन दैट केस इफ वी अप्लाई KVL, so we will take I as the value of the current at any instant t greater than 0। तो वो हमारे करंट की वैल्यू है, R कांस्टेंट है, इंडक्टर की L की वैल्यू कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। तो वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस, V इज इक्वल टू IR प्लस L DI बाई dt। तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, R से सभी को डिवाइड कर देते हैं, तो V बाई R इज इक्वल टू I प्लस L बाई R DI बाई dt। तो V बाय R आप अगर इधर देखिए, I को लेफ्ट साइड ला दिया, तो V बाय R माइनस I, ये I को लेफ्ट साइड ले गए, इज इक्वल टू L बाय R DI बाय dt। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जो DI है उसके नीचे पूरा आ जाएगा, DI डिवाइडेड बाय V बाय R माइनस I एल इज इक्वल टू, जो L बाय R था वो इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा, तो R बाय L हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय dt। तो ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा R बाय L, ये कांस्टेंट वैल्यू है, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ln V बाय R माइनस I प्लस K इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हमें K की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ड्यूरिंग इनिशियल कंडीशन व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, करंट इज इक्वल टू 0,
क्यों? बिकॉज द एनर्जी स्टेट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टेट को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देगा। तो टी की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू 0 है, तो आर बाय एल मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस एल एन वी बाय आर माइनस 0 प्लस के। तो जहाँ जहाँ पे टी एंड आई थे वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमें के की वैल्यू मिलेगी के इज इक्वल टू एल एन वी बाय आर। Now if we substitute this value in equation number these two, we will get r by lt is equal to minus ln v by r minus I plus k की जगह पे आएगा ln v by r। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ln v by r डिवाइडेड बाय v by r माइनस I। तो देयरफॉर ln इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, एल एन वी माइनस आई आर डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल टी। तो आर आर इसमें कैंसिल आउट हो गया, v बाय आर है, आर से आई को मल्टीप्लाई करो तो v माइनस आई आर डिवाइडेड बाय आर होगा। ये v बाय आर है, आर आर कैंसिल आउट हो गया तो होगा v डिवाइडेड बाय v माइनस आई आर। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइड इस साइड आ गया तो माइनस आर बाय एल टी। देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस, v माइनस आर आई अपॉन v इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, v डिवाइडेड बाई वी वन आर आई डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर आर बाई वी आई इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले गए, इसको लेफ्ट साइड लाए तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल। देयरफॉर आई इज इक्वल टू v बाय आर 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल। तो ये हमारा हुआ इक्वेशन फॉर द करंट, बिकॉज वी आर हैविंग सर्किट ऑफ इंडक्टर। तो ये इंडक्टर करंट है और ऑल द टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब स्विच क्लोज करेंगे इमीडिएटली जो कोई भी करंट फ्लो होने लगेगा, दैट इज दिस। Now the voltage across resistor at any instant। तो रजिस्टर जो हमारा है उसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, R इंटू आई। आई की वैल्यू है हमारे पास, तो R मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, सो आर कैंसल आउट हो जाएंगे, V इंटू 1 माइनस ई रिज टू माइनस आर टी अपॉन एल। इक्वेशन नंबर 4। ना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम। तो अगर हमें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, वी एल इज इक्वल टू वी माइनस वी आर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप इसमें के वी एल अप्लाई करते हो तो V इज इक्वल टू क्या होता है, दैट दिस इज वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वी एल क्या होगा, V माइनस वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो हमने वी एल की वैल्यू के लिए V माइनस वी आर लिखा, तो V माइनस दिस वैल्यू वी आर। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और उसकी वैल्यू है V इंटू ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। Now if you want the current in the network at any instant a long time after switch was closed, मतलब कि जब it reached into steady state, then we get the value like this. We can take t is equal to infinite in the equation number 3। हमारा इक्वेशन नंबर 3 ये है, जो फाइनल करंट का इक्वेशन है, वहाँ पे हम टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा v बाय आर 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट। तो v बाय आर 1 माइनस 0 दैट इज v बाय आर। तो ये है हमारा मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट। दिस इज कॉल्ड I max।
तो V बाय आर इज आई मैक्स। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज आई मैक्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मैक्स into e raised to minus RT upon L. So the current is having two components. One component is independent of the time, that is constant. With respect to time इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, constant रहेगी, because I max is V by R. V is constant, R is constant. Another is dependent upon the time. तो ये exponential function है. As time increasing, it decreases exponentially. So this value is dependent upon time, this is independent of the time. ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है और उसको हम फोर्स रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। तो व्हेन b इज इक्वल टू 0 t मैक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एस, दैट इज स्टेडी स्टेट कंपोनेंट, एस फॉर स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू v बाय आर। नाउ जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एट t is equal to infinite, the value of this component would be 0. इसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट कंपोनेंट और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ये दो पार्ट में है, एक है स्टेडी स्टेट, दूसरा है ट्रांजिएंट। वी कैन राइट लाइक दिस, आई इज इक्वल टू आई स्टेडी स्टेट प्लस आई ट्रांजिएंट। आई स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू v बाय आर एंड आई ट्रांजिएंट इज इक्वल टू minus v by r e raised to minus rt upon l. This is our equation number 8. So if plot this equation with respect to time, or we plot the current of the inductor with respect to time, we get the plot like this. So initially this increases at higher rate, then the increase in the current is reduced, rate of change of current is reduced, and gradually it reaches to the steady state value. Steady state value is, this is I max, I max is equal to V by this is our steady state value of the current. Okay, so this is the plot for the V by R 1 minus e raised to minus RT upon L. तो ये जो रेट ऑफ राइज ऑफ करंट है वो इनिशियली कैसा होगा, रैपिड होगा। दिस पार्ट इज वेरी रैपिड, देन इट गेट्स लोअर, रेट ऑफ राइज ऑफ करंट गेट्स लोअर एंड जीरो एट द लॉन्ग टाइम। तो इससे हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल। इफ यू पुट टाउ, दैट इज we will take as time constant is equal to L by R. L by R is equal to हम टाउ लिखेंगे। तो इक्वेशन होगा I is equal to I max 1 minus e raised to minus t upon tau. So if we put t is equal to tau, then we get the equation I is equal to I max 1 minus e raised to minus tau upon tau, 1 minus e raised to minus 1 and 1 minus 0.368 हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू 0.632 आई मैक्स, जो हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू है, दैट इज 63.2% ऑफ आई मैक्स। सो वी कैन से दैट टाइम टेकन इन सेकंड्स फॉर करंट टू अटेन 63.2% ऑफ द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू आई मैक्स इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर। तो इधर आप देखोगे कि 63.2% ऑफ आई मैक्स, इसको अटेन करने के लिए जो टाइम लगा दैट इज अवर टाउ टाइम कांस्टेंट। तो if the value of the inductor is increasing and value of the resistor is decreasing, then value of the tau increases. So current takes longer time to attain the steady state final value if the value of inductor is high. तो इंडक्टर की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो करंट स्टेडी स्टेट वैल्यू जल्दी अटेन करेगा। अगर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी और रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी तो करंट विल टेक मोर टाइम टू अटेन दी स्टेडी स्टेट वैल्यू।
अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ करंट एट डिफरेंट टाइम्स। सो हमारे पास करंट का इक्वेशन है, उससे हम डिफरेंट टाइम पे करंट की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट, तो वी हैव इक्वेशन I इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई एस टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट मिलेगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू t is equal to 0 in this equation, so we get I max 1 minus 1 is equal to 0. So at the instant when we close the switch, at immediate that instance, the inductance does not allow the current to change its value, because initial value of the current was 0. Inductor was in steady state, inductor was not storing any energy, so it was not allowed to increase the current immediately. So that at the moment we close the switch, the current is equal to 0. So this is the initial value of the current. Now rate of rise of increase of current at time t greater than 0. तो हमारा इक्वेशन करंट का है I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी बाय आर जो हमने लिया था। तो द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट मतलब कि डी आई बाई डी टी, तो इसको डी आई बाई डी टी करेंगे तो डी बाई डी टी क्या होगा, वी बाय आर 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। डी बाई डी टी, इधर 1 को वी बाय आर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी वी बाय आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऐसे होगा। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेशन होगा 0। इसका हमने डेरिवेशन किया वी बाय आर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन टाउ ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ, तो इज इक्वल टू वी अपॉन आर टाउ ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। We will substitute the value of the tau, that is L by R. So this is V by R. Value of the tau is L by R e raised to minus t upon tau. So the final answer is V by L e raised to minus t upon tau. This is rate of rise of increase of current at time t greater than 0. So if you see this equation, V is constant, L is constant, time is constant. The only variable we get is tau is constant, only variable we get is time. So the rate of rise of increase of current, it depends upon the time. Now we will find initial rate of rise of the current, that is di by dt at time t is equal to 0. So if we substitute the value t is equal to 0 in this equation, we will get v by L e raised to 0, and that is v by L ampere per second. So the initial rate of rise of the current is V by L ampere per second. Final steady state value of the current हम फाइंड करेंगे। So at time t is equal to infinite, हम theoretically final steady state value के लिए टाइम लेंगे infinite. Practically this time is very short and finite time, but for theoretical purpose we will take t is equal to infinite. So steady state value of the current Is is equal to I at t is equal to infinite. We will substitute the value of t is equal to infinite in the equation of I. So it will become e raised to minus infinite upon tau. And that's why V by R 1 minus 0 is equal to V by R. This is our maximum current or steady state current. Though this time is infinite theoretically, practically it attains final value in less than 1% after a time t is equal to 5 tau. तो इसका मीनिंग ये है कि more than 99% of the final value will be attained within time t is equal to 5 tau. तो 5 tau तक के टाइम पे more than 99% of the steady state value, ये वैल्यू अटेन हो जाएगी, और less than 1% वैल्यू will be attained after the 5 tau. So we can write I is equal to I maximum 1 minus e raised to minus t upon tau. t की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे 5 tau, ये हमारा करंट का इक्वेशन है, उसमें t की जगह पे 5 tau लिखेंगे, तो क्या होगा I maximum 1 minus e raised to minus 5, इसकी वैल्यू है 0.0067, तो 1 में से माइनस होगी तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.993 I maximum. So 99.3% value of the steady state value we will attain within the time limit of 5 tau. So for all practical purposes, current reaches its final value after t is equal to 5 tau.
So the length of the transient period would be approximately up to 5 tau तक होगी, is equal to 5 tau. Now if we take initial rate of rise of current, that is di by dt is equal to t is equal to 0, तो उसकी वैल्यू क्या है v by l and it decreases exponentially. हमें फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट मिली एंड दैट इज v by r. So if initial rate of rise of current is maintained, then the time taken to reach its final value वो कितना होगा, that is v by r जितना होगा. So let us put equation t is equal to final value of the current divided by rate of rise of the current at t is equal to 0. तो ये फाइनल वैल्यू है, ये रेट ऑफ राइज ऑफ करंट है, तो वी गेट L by R इज इक्वल टू टाउ. तो इससे हमें टाउ का और एक डेफिनेशन मिल सकता है कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू इफ इट्स इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ द करंट इज मेंटेन्ड कांस्टेंट. ठीक है, तो जो इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट है अगर हम कांस्टेंट मेंटेन करेंगे तो हमें जो टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू रीच इज द फाइनल वैल्यू वो हो जाएगा. तो ये टाइम है फॉर द करंट टू रीच इट्स फाइनल वैल्यू दैट इज टाउ इफ वी मेंटेन इनिशियल रेट ऑफ राइज. ऑल्सो द टाइम कांस्टेंट इज टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर. टाइम कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा इन दिस केस ऑल्सो इफ वी मेंटेन द इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ द करंट, वो रहेगा एल बाय आर. अब हम बात करेंगे डीके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट. तो पहले था राइज ऑफ द करंट बिकॉज इंडक्टर डज नॉट अलाउ इमीडिएट चेंज इन द करंट. सो इनिशियली इफ यू स्विच ऑन देन करंट राइज होता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेन करता है. जब इंडक्टर ने फुल एनर्जी स्टोर कर दी है और करंट की वैल्यू हाई है, स्टेडी स्टेट वैल्यू है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में कनेक्ट करेंगे. तो एट दैट टाइम RL कॉम्बिनेशन इज शॉर्ट सर्किटेड. तो इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्विच S वॉज इन पोजीशन 1 टिल करंट अटेन इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू I max. तो करंट I max की वैल्यू में फ्लो हो रहा था, उस टाइम पे हमने स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में कनेक्ट कर दिया. तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा. इन दिस केस इफ वी टेक द करंट I, करंट की डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ली है क्योंकि इंडक्टर करंट की डायरेक्शन सेम मेंटेन करेगा. ठीक है, इंडक्टर विल नॉट अलाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल एज इट विल नॉट अलाउ change in the value of the current. So if we apply KVL at any instant when the value of the current is I, we get the equation of KVL in this circuit like this: L di by dt plus Ri is equal to 0. Di by dt plus R by L multiplied by I is equal to 0. Therefore di by I is equal to minus R by L dt. ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया. L को इधर ले गए, फिर I को इधर ला दिया. So if we integrate with respect to time on both the side of this equation, we get ln I is equal to minus R by L t plus K1. K1 is the constant of integration. So if we apply initial condition, that is time t is equal to 0. At time t is equal to 0, the value of the current is I max, that is V by R. So we will substitute the value ln I max is equal to minus R by L. टाइम की वैल्यू 0 है प्लस K1, सो वी विल गेट K1 इज इक्वल टू ln I max. Substituting this value in equation number 18, we get ln I is equal to minus R by L t plus ln I max in place of K1. So ln I इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस ln I max इज इक्वल टू माइनस R by L t. तो ln I डिवाइडेड बाई I max इज इक्वल टू माइनस R by L t. तो ln निकालेंगे तो क्या होगा, I डिवाइडेड बाई I max इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस R by L मल्टीप्लाई बाई t. तो हमें I की वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर I इज इक्वल टू I max इस साइड चला गया, राइट साइड ऑफ द इक्वल टू साइन. I इज इक्वल टू I max ई रेज टू माइनस R t अपॉन L. ये हो गया इक्वेशन नंबर 19. So we know that the value of tau is L by R
तो इसमें L बाय आर की जगह पे हम टाउ लिखेंगे तो आई मैक्स ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ होगा। अभी हमें आई मैक्स की वैल्यू भी मालूम है, द वैल्यू ऑफ आई मैक्स इज V बाय आर, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा V बाय आर ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो इक्वेशन ऑफ करंट मिला हमें इन केस ऑफ डीके, तो इसको हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज बेसिक इक्वेशन ऑफ द करंट इन केस ऑफ डीके ऑफ द करंट, उसको हम टाउ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड आई मैक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द प्लॉट फॉर द डीके ऑफ द करंट। तो ये येलो कलर का हमारा करंट है, दिस प्लॉट इज करंट वर्सेस टाइम, दिस इज V बाय आर ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ, वैल्यू ऑफ आई। So the I maximum when switch was in position 2, the switch was shifted in position 2, the value of the current was I maximum, that is V by R. It gradually decreases and it reaches its value to 0 at infinite time. So if we substitute t is equal to tau in equation 20, हमारा equation 20 ये था, इसमें हम t is equal to tau सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी आई मैक्स ई रेस टू माइनस 1 एंड दैट इज 0.368 आई मैक्स, दैट इज 36.8% ऑफ द आई मैक्स। सो द करंट डीकेज टू 36.8% टाइम्स आई मैक्स इन वन टाइम कांस्टेंट टाइम। तो ये हमारा टाउ है, तो इतने टाइम में जो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी वो कितनी होगी, 36.8% ऑफ द आई मैक्स। आई मैक्स की 36.8% वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आई मैक्स था, यहाँ पे हो जाएगा 0.368 टाइम्स आई मैक्स, इतनी वैल्यू यहाँ पे हो गई। इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू t इज इक्वल टू 5t इन द इक्वेशन ऑफ द करंट, हम इक्वेशन ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू आई मैक्स ई रेस टू माइनस 5t अपॉन टी, तो ई रेस टू माइनस 5 हो जाएगा तो 0.0067 आई मैक्स हो गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि टाइम टेकन फॉर द करंट टू रिड्यूस टू 0 इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाउ। तो ये 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट जितना टाइम लगेगा करंट को 0 की वैल्यू अटेन करने के लिए। तो हमने आरएल सर्किट का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस किया, तो उसमें जो ट्रांजिएंट टाइम है दैट इज़ द टाइम बिटवीन फर्स्ट स्टेडी स्टेट टू अनदर स्टेडी स्टेट, तो उसके बीच में जो डिस्टर्बेंस है वो स्टेडी होने में जो टाइम लगता है दैट इज़ ट्रांजिएंट टाइम। तो जो आरएल सर्किट में उसमें हमारा वेरिएबल है करंट, तो जब स्विच हम ऑन करेंगे पोजीशन 1 में और वो सप्लाई में वोल्टेज लगाएंगे सप्लाई वोल्टेज, तो करंट की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगी। जब हम स्विच को पोजीशन 2 में कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी एंड इट विल रीच टू 0। तो ये हमारे 2 स्टेट्स थे, दोनों के लिए हमने एनालिसिस किया। तो इन दोनों केसेस में आपको करंट की इक्वेशन याद रखने हैं, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान में रखनी है, टाइम कांस्टेंट कैसे हमने डिफाइन किया वो ध्यान में रखना है, और वो करंट की वैल्यू को यूटिलाइज करके आप रिलेवेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो।